नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल में फ्लाईओवर के नीचे की एक महत्वपूर्ण सड़क को बंद करने की रेलवे की तैयारी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। GT रोड के कुमारपुर स्थित मनोज सिनेमा हॉल के पास रेलवे अधिकारियों ने रविवार सुबह सड़क बंद करने का काम शुरू किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए काम फिलहाल रोकने की अपील की। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस सड़क से रोजाना करीब 10,000 वाहन, जिनमें टोटो, रिक्शा, स्कूल वैन और 2 पहिया वाहन शामिल है, गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा या किसी दुर्घटना के दौरान फ्लाईओवर पर जाम लगने पर पुलिस भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती है। आरोप है कि सड़क बंद करने से पहले ना तो कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही स्थानीय लोगों से चर्चा की गई। अब लोगों ने जिलाधिकारी और DRM से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि जब तक बातचीत नहीं होती तब तक सड़क बंद करने का फैसला टाल दिया जाए। फिलहाल रेलवे और जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ব্যাপারটা নিয়ে কি এখানে সাডেন আমরা আজকে সকালে দেখছি কি রেলওয়ে আমাদের এই রাস্তাটা বন্ধ করছে। আপনি দেখিয়ে দিন এই রাস্তাটা, ফ্লাইওভারের নিচেরটা। এই রাস্তাটা ওপরে যখনও দুর্গাপূজা থাকে তখন ওপরে জাম হয়ে যায়, পুলিশ এই রাস্তাটা খুললে। তারপর আপনার সকাল থেকে বিকাল অবধি না কিছু করলে 10,000 গাড়ি নিচে দিয়ে পেরোয়। ঠিক আছে, আমাদের ব্যাপার হচ্ছে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, সাইকেলওয়ালা সব ওপর দিয়ে যাবে, হেঁটে মানুষ ওপর দিয়ে যাবে। এরা রোড মানে একটা ভ্যালিড রিজন দেখি এই কারণে আমরা বন্ধ করছি। এখন 3-4 বার আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। 3-4 বার অ্যাক্সিডেন্টে গাড়ি পুরো রাস্তা ফ্লাইওভারটা ব্লক হয়ে গেছিল, ট্রাক পড়ে গেছিলো, পুলিশ নিচে দিয়ে রাস্তা খুলেছে। তো এইটা বন্ধ করার রিজনটা কি আমরা ওইটা জানতে চাইছি। এনারা বলছেন DM সাহেব অর্ডার দিয়েছেন বন্ধ করার। তো একটা কোনো ভ্যালিড রিজন হবে কি এই রাস্তাটা বন্ধ করা হবে। তো কারণটা কি এই রাস্তাটা বন্ধ করার? DRM সাহেব বলুক বা DM সাহেব বলুক, আমাদের সব বাসিন্দারা এখানে মিনিমাম কমসে কম না কিছু করলে 5টা ওয়ার্ড এটা থেকে এফেক্টেড হয়ে যাবে। সব সকাল সকাল ছোট স্কুলের যত ভ্যান আছে সব এই রাস্তা দিয়ে পেরোয়, আপনারা সকালে এসে দেখে নেবেন। ওপরে যায় না, বৃষ্টি পড়লে ওপরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সব টোটাল স্কুল ভ্যান নিচে দিয়ে যায়। তো কারণটা কি আছে এত বড় রাস্তাটাকে বন্ধ করার? ওইটা DM সাহেব এনারা বলছেন, DM সাহেব বলছেন, DRM সাহেব বলছেন বন্ধ করতে। তো দেয়ার মাস্ট বি সাম ভ্যালিড রিজন কি কেন বন্ধ হচ্ছে। এইটা নিয়ে পরে কোনো ভাবে কোনো নোটিশ বা কোনো কিছু এখানে বাসিন্দাদেরকে কিছু দেয়নি, কোনো বাসিন্দাদের সিটিজেনকে কিছু দেয়নি, না আমাদের সঙ্গে কোনো সভা করেছে কি বলে কি আমরা এই রাস্তাটা বন্ধ করছি। আলটিমেটলি আমরা বেনিফিশিয়ার আছি এই রাস্তা থেকে। তো DM সাহেব হোক, DRM সাহেব হোক, সিটিজেনদের ভাবতে হবে। সিটিজেনের জন্য কিছুই ভাবছে না, আমাদের থেকে একটু ডিসকাস করতেন, আমরাও জানতাম কি হ্যাঁ এটা ভ্যালিড রিজন আছে বন্ধ করার এই রাস্তাটা। রাতের বেলা এখানে ক্রাইম হয়, কিছুদিন এইদিকে আগে এখানে মার্ডার হয়েছে। তো এটা বন্ধ করলে তো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিও বেড়ে যাবে। রাতের বেলা পুলিশ পেট্রোলিং করে এই রাস্তাতে। তো এটা দিয়ে কটা কলোনি জড়িত আছে, এটা কেন বন্ধ হচ্ছে এটা আমরাও বুঝতে পারছি না। এইটা নিয়ে আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি কি এই রাস্তা आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं
कोई भी आयोजन हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। झारखंड के निरसा में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी प्रिंटिंग प्रेस का भांडाफोड़ किया है। शनिवार शाम गुप्त सूचना के आधार पर BCCL के एक परित्यक्त क्वार्टर में छापेमारी की गई, जहां अवैध तरीके से लॉटरी टिकट छापने और उनकी पैकेजिंग का काम चल रहा था। पुलिस ने मौके से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के छपे हुए लॉटरी टिकट, प्रिंटिंग मशीनें और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। SDPO लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में चिरकुंडा थाना पुलिस ने यह अभियान चलाया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये अवैध नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और यहां से बड़ी मात्रा में लॉटरी टिकट विभिन्न इलाकों में भेजे जाते थे। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है और इसका नेटवर्क किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। फिलहाल जब्त किए गए सभी सामान को कब्जे में लेकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। उसके आधार पर हम लोग छापामारी किए तो हम लोग उम्मीद से ज़्यादा वहाँ पे मैंने लॉटरी छापने का मशीन और लॉटरी का जो भी उपकरण जिसे बनाया जाता है सारा चीज़ हम लोग बरामद कर लिया है। लॉटरी भी भारी मात्रा में बरामद हुआ है। किसी की हिरासत में भी सर लिया गया? क्यों हिरासत में कानून लिया गया है, अभी पूछताछ जारी है, आगे हम लोग काम करेंगे। बराकर स्थित सिद्धेश्वरी मंदिर का रविवार सुबह कुल्टी के विधायक एवं राज्य के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने दौरा किया। मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने बताया कि सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बराकर नदी में स्नान कर जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर सड़क की मरम्मत कराई गई है और पूरे मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था भी की गई है, ताकि कौरियों और भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मंत्री ने यह भी कहा कि सनातन धर्मावलंबी और स्थानीय लोग कांवड़ यात्रियों की सेवा में पूरे मन से जुटे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। सावन के पवित्र महीने में सिद्धेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और प्रशासन भी सुरक्षा व व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमने बराकर सिद्धेश्वरी मंदिर से ही स्टार्ट किया था। सारे लोग डिसरगढ़ घाट से जल उठाकर बाबा सिद्धेश्वर नाथ के यहाँ ही जल अर्पण करते हैं। तो मंदिर की व्यवस्था, वहाँ प्रांगण में लाइट की व्यवस्था, वहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देखने के बाद रोड परिवहन के लिए मैं निकला था। रास्ते में PWD के माध्यम से कहा गया था कि आप यथाशीघ्र रोड को रिपेयर करें जितना संभव है वर्षा काल में, जिससे कांवड़ यात्रियों को चलने में असुविधा ना हो। उन लोगों ने अथक प्रयास करके रोड को बनाने का प्रयास किया है और रोड पर लाइट भी जितनी स्ट्रीट कॉर्नर लाइट से सारी जल रही है। अगर कहीं भी व्यवधान हुआ तो इमीडिएट हम लोग वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करेंगे। यहाँ देखा कि बराकर जाने वाले रास्ता में, जो जंगल वाला रास्ता में, वहाँ पर लाइट का बहुत कमी, लाइट ही नहीं है रास्ता में। हाँ, भाना पुल के पास वहाँ तो स्ट्रीट लाइट है। बराकर से जो ये रोड की लाइट कम है इस रोड पे भी, और कुछ रास्ता खराब है दिखा गया है जिस रास्ते से आए हम लोग। भाई ये बरसात में जितना संभव है उतना तो आप देख ही रहे हैं कितना वार्ड लेवल पे काम हो रहा है। और जहाँ भी लाइट का कमी होगा वो मेरे मंडल अध्यक्ष जनरेटर से लाइट लगा देंगे, उसमें क्या सोचने की बात है। तो SOS ऑर्डर दिया हुआ है। कवरियों को क्या क्या सुविधा देंगे आप लोग?
भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से नहीं, यहाँ की जनता उन लोगों के साथ है। जनता सुविधा देती है, सारे लोग कैंप लगाते हैं। ये किसी पार्टी का काम नहीं है, सच सनातन धर्म का काम है। सच सनातन धर्म के जितने लोग मानने वाले हैं सारे लोग सामने आकर उनकी सेवा करते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का और किसी पार्टी का मामला नहीं है। हाँ, हम लोग शासन में हैं तो शासन की तरफ से जो कुछ करने का होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। रानीगंज में रविवार को विधायक पार्थ घोष के नए विधायक कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। पंजाबी मोड़ स्थित इस कार्यालय का उद्घाटन पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने फीता काट कर किया। इस मौके पर राज्य के मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार, बाराबनी के विधायक अरिजीत रॉय, रानीगंज मंडल 1 के अध्यक्ष शमशेर सिंह सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद विधायक पार्थ घोष ने कहा कि इस नए कार्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को अपनी समस्याएं रखने और जनप्रतिनिधियों से मिलने में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि पंजाबी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित होने के कारण ये कार्यालय आम लोगों के लिए आसानी से पहुंचने योग्य है। पार्थ घोष ने विश्वास जताया कि इस कार्यालय के माध्यम से क्षेत्र के विकास कार्यों और जन सेवा से जुड़े कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। बाराबनी से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रविवार सुबह जंगल में एक ही पेड़ की डाल से एक वृद्ध महिला और एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गोरांडी इलाके के जंगल की है। स्थानीय लोग सुबह लकड़ी बिनने गए थे, तभी उनकी नजर पेड़ से लटक रहे दोनों शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत बाराबनी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। मृतकों में करीब 55 वर्षीय महिला और 25 वर्षीय युवक शामिल है। दोपहर तक दोनों की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने सभी थानों को शव की तस्वीरें भेजकर पहचान कराने की कोशिश शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या के बाद शव को जंगल में लटकाया गया। फिलहाल पुलिस दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई इन दोनों की पहचान कर सके या उनसे जुड़ी कोई जानकारी हो तो तुरंत बाराबनी थाना से संपर्क करे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा। दुर्गापुर के बेनाचती बाजार में रविवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सरकारी वजन एवं माप विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सब्जी और मछली बाजार समेत कई दुकानों की जांच की। जांच के दौरान कुछ दुकानों में वजन मशीन की वैधता समाप्त होने के बावजूद उसका इस्तेमाल करते हुए पाया गया। अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों को तुरंत लाइसेंस और वजन मशीन का नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया। साथ ही साफ चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी अनियमितता मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी जारी रहेगा। ম্যাডাম আপনি কি দেখলেন? আজকে আমরা মূলত এই ঘোষ মার্কেট যেটা আছে বেনাচিতি, সেটা এখানে আমাদের মূলত পাইকারি বাজারগুলো আছে। প্রথমে আমরা এই সমস্ত পাইকার যারা আছে আলু পেঁয়াজ তাদের কাছে যাওয়া হয়েছিল, সবজি বাজার ঘোরা হলো, মাছ হলো, র্যান্ডম দেখা হচ্ছে আমাদের। মাছের বাজারে একটা শোনা যায় যে ওজনের একটা গাফিলতি থাকে আর না, সেজন্যই যারা আমাদের লিগাল মেট্রোলজির মেম্বার আমাদের টিমে রয়েছেন, ওনারা ওয়ে মেশিনগুলো চেক করছেন এবং বলা হলো যে ওনাদের যে সার্টিফিকেটগুলো লিগাল মেট্রোলজি থেকে ইস্যু করা হয় কারেন্ট, সেগুলো দেওয়ার জন্য অনেকের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো পেপারস আছে কিন্তু এই মুহূর্তে দেখাতে পারলেন না, সার্টিফিকেটটা ঝুলিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে, আমাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। বাজারে এই একটু দূরে বাঁ দিকে একটি পনিরের দোকান আছে, সেখানে খুব কম মূল্যে পনিরটা পাওয়া যায় এবং আমাদের অনেকেরই ধারণা এটা ঠিক পনির নয়। এই ব্যাপারটা কি আপনারা দেখবেন আর কি?
না আপনাদের কাছে ফিডব্যাক পেলাম, নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে আমরা কথা বলে দেখছি আমাদের হয় নিশ্চয়ই দেখবো। আচ্ছা ম্যাডাম, যেটা আপনার যে ওয়েট মেশিনটা যেটা বললেন সেটা কতদিন পর আবার রিচেক হবে? এটা কি কোনো কিছু রিচেক হবে? ওনাদের এই বিষয়টা লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তরে ওনারা যারা যান ওনারা জানেন, এই বিষয়টা ওনারাই ঠিকঠাক বলতে পারবেন। जमुड़िया के तपसी साइडिंग में रविवार सुबह डंपर मालिकों और चालकों ने परिवहन पूरी तरह बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रांसपोर्टर ने पिछले 2 महीनों से परिवहन का बकाया भुगतान नहीं किया, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। डंपर मालिकों का कहना है कि बकाया नहीं मिलने के कारण वे चालकों का वेतन, बैंक लोन की किस्त, डीजल और गाड़ियों के रखरखाव का खर्च तक नहीं उठा पा रहे हैं। मजबूरी में उन्हें परिवहन सेवा बंद करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक पूरा बकाया भुगतान नहीं होगा तब तक एक भी डंपर नहीं चलेगा। इस हड़ताल का असर अब उद्योगों पर भी दिखाई देने लगा है। तपसी साइडिंग से फैक्ट्रियों तक पहुंचने वाला कच्चा माल रुक गया है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो कई उद्योगों में कच्चे माल का संकट पैदा हो सकता है और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। डंपर मालिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए ट्रांसपोर्टर और मालिकों के बीच वार्ता कराकर जल्द समाधान निकालने की अपील की है, ताकि परिवहन व्यवस्था सामान्य हो सके और उद्योगों का कामकाज प्रभावित न हो। আমাদেরকে যদি পেমেন্ট করতে হয়, আমাদের নিতে হয় ট্রান্সপোর্টারদের কাছ থেকে পার্সেন্টেজ কাটিয়ে আমাদেরকে পয়সা নিতে হয়। এখন সাইডিংয়ে লেবার বলুন, কাঁটা বলুন, আদার্স যারা আছে সবাইকে নগদ দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদেরকে কেউ আমাদের সাহায্য করে না আর আমাদেরকে ক্যাশ পয়সার ব্যবস্থাও কি করে না। আজ অনেক দিন হয়ে গেল, রেটও বাড়েনি আমাদের। কত রেট আছে আপনাদের? আমাদের লোকালের রেট আছে 103 টাকা পার্সেন্টেজ কেটে। তো আমাদের এত অবস্থা খারাপ, মানে আমরা তেল ভরাতে পারি না, ড্রাইভারের বেতন নিতে পারছি ক্ষমতা, আমরা গাড়ি মেনটেন করতে পারি না, পেপার অনেক গাড়ি আমরা ঠিক করে রাখতে পারি না, ডিজেলের দাম অনেক দিন আগের থেকে বেড়েছে। আমরা অনেক জায়গায় গেছি, অনেকভাবে আমরা চেষ্টা করেছি, ট্রান্সপোর্টের কাছে আমরা হাত জোর করে শুধু বলেছি যে আমরা সামান্য এক আধটা গাড়ির মালিক, আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। হ্যাঁ, আমরা স্থানীয় এখানকার লোক, ঠিক আছে। তো আমরা চাইছি সুষ্ঠুভাবে চলুক, আমাদের যেমন সুষ্ঠুভাবে পেমেন্ট দেয়। আমরা সব বেকার আছি, এক আধটা করে গাড়ি আমাদের, এর থেকে আমাদের সংসার চলে, আমাদের কোনো করার উপায় নেই। তো আমরা খুব করুণ অবস্থায় আছি। তো তাই আমি সংবাদ মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে বার্তা দিতে চাই যেন আপনারা সবাই আমাদের হেল্প করেন। আমাদের এই সামান্য ব্যবসা আমরা করে খাই, যেমন আমরা সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারি। অনেকবার হয়েছে, কি বলেছে সব আশ্বাস দিয়েছেন ওনারা। এই সমস্যাটা কি আপনাদের আগেও ছিল না, প্রথম হয়েছে? এই সমস্যা বরাবরই কম বেশি আগের থেকে হয়ে আছে, কিন্তু পেমেন্ট পেয়ে যায়, কিন্তু পার্সেন্টেজ কেটে পেমেন্ট পায়, কিন্তু পার্সেন্টেজ এখন ইদানিং এখন যে অবস্থা আছে, আমরা বিগত 3 মাস হয়ে গেল আমরা পেমেন্ট পাই না। আমরা গাড়ি চালাতে খুব অক্ষম। এখানে কোর্টে ট্রান্সপোর্টার আছে? ট্রান্সপোর্টে এখানে আছে 4টে আইটি। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पुरुलिया के रघुनाथपुर डीवीसी ताप विद्युत केंद्र से निकलने वाले राख से भरे ट्रक अब कुल्टी में लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। आरोप है कि ट्रकों को तिरपाल से ढका तो जाता है, लेकिन नीचे से लगातार राख सड़क पर गिरती रहती है। डेसरगढ़ से न्यामतपुर होते हुए चितरंजन तक सड़क पर धूल और राख की मोटी परत जमा हो रही है। वाहनों के गुजरते ही धूल का गुब्बार उड़ता है, जिससे राहगीरों, बाइक सवारों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और सड़क हादसों
हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। रविवार को न्यामतपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ट्रक चालकों को चेतावनी दी और नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 ट्रकों पर जुर्माना भी लगाया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ जुर्माना लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन से नियमित निगरानी और सुरक्षित तरीके से राख परिवहन सुनिश्चित करने की मांग की है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।